بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام رابعہ ہے۔ آج میں آپ کو خود سے جڑی ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ جن دنوں اکبر 5 برس کا تھا، اس کے والدین ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ امی نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو پالا پوسا۔ وہ میری ماں کو امی جان کہتا تھا اور ان کی فرما برداری ایک بیٹے کی طرح کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس بچے نے بالآخر ایک لمبے تڑنگے نوجوان کا روپ دھار لیا۔ میرے والدین اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اکبر کی صورت میں بیٹا دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور اس کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے حسد ہونے لگتا کہ میں ان کی سگی اولاد ہوں، لیکن وہ مجھ سے بڑھ کر اکبر سے پیار کرتے تھے۔ جن دنوں میں 7ویں میں تھی اور اکبر میٹرک میں تھے، والد صاحب رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ اب ہم دونوں کی پرورش کا بوجھ امی پر آن پڑا۔ والد صاحب کی کچھ جائیداد تھی، اس کے کرائے سے ہمارا گھر چلنے لگا۔ اکبر نے میٹرک پاس کیا تو کالج کی تعلیمی اخراجات کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ تب امی نے ایک دکان بیچ دی تاکہ اسے کالج میں داخلہ دلوا سکیں اور ان کا بھتیجا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ میٹرک کے بعد میں نے بھی ضد کی کہ کالج میں پڑھنا ہے۔ تب امی نے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا کہ تم لڑکی ہو اور لڑکیوں کے لیے کالج جانا لازمی نہیں، انہیں ایک نہ ایک روز گھر بسانا ہوتا ہے۔ یوں مجھ کو میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ اکبر نے گریجویشن مکمل کر لی تو امی کو اس کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہوئی۔ وہ ابھی ملازمت کی تلاش میں تھا۔ کہتا تھا، امی جان تھوڑے دن ٹھہر جائیں، مجھ کو برسر روزگار ہو لینے دیں، پھر چہرہ بھی دیکھ لینا۔ 5 ماہ کی تگ و دو کے بعد اسے ایک محکمے میں نوکری مل گئی۔ امی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تمام محلے میں مٹھائی تقسیم کی کہ بیٹا پڑھ کر برسر روزگار ہو گیا ہے، اب اس کی دلہن ڈھونڈنے چلیں گے۔ کچھ خیر خواہوں نے مشورہ دیا، اکبر کو بیٹا بنایا ہے اور اتنی محبتوں سے پالا ہے تو اپنی بیٹی سے اس کی شادی کیوں نہیں کرا دیتی؟ کسی اور لڑکی کو گھر لاؤ گی؟ فی زمانہ بہوؤں کا یہ عالم ہے کہ ایک دن دلہن بن کر آتی ہیں، دوسرے دن دولہا کو لے کر علیحدہ ہونے لگتی ہیں۔ تم بیٹا کھو دو گی، یہی ایک ہستی تمہارے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے۔ امی کی سمجھ میں بات آ گئی۔ میرے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ نہ مل رہا تھا، بس انہوں نے یہ تجویز اکبر کے سامنے رکھ دی کہ بیٹا تم کو بیٹا بنایا ہے، اب تمہیں ہی داماد بنانا چاہتی ہوں۔ میرے بھتیجے ہو، جس قدر میرا خیال رکھو گے کوئی دوسرا نہ رکھ سکے گا، تمہارے سوا اور کون ہے میرا، پھر جائیداد بھی گھر میں رہے گی۔ اکبر نے اس معاملے میں بھی فرما برداری کا ثبوت دیا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی امی جان، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں، حکم عدولی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں گھر کی لڑکی گھر میں رہی اور میری شادی اکبر سے ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ان کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا، جہاں رہائش کا کوئی معقول انتظام نہ تھا، تو اکبر نے مجھے امی جان کے پاس ہی رہنے دیا۔ وہ خود 15 روز بعد 1-2 دن کے لیے آ جاتے اور پھر ڈیوٹی دینے واپس چلے جاتے۔ اکبر کچھ لاابالی لگتے تھے، مگر شادی کے بعد بہت سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گئے تھے۔ ساری تنخواہ لا کر امی جان کے ہاتھ میں رکھتے اور میرے لیے بھی تحفے لاتے۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بچی سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی اور اکبر مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے۔ 1 سال اور پلک جھپکتے گزر گیا اور اب میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ امی جان بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اکبر اب دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ 1 ماہ کبھی 1.5 ماہ بیت جاتا، امی جان سے فون پر بات کرتے، مجھے نہ بلاتے۔ جب وہ کہتی کہ اتنے دن گزر گئے آئے کیوں نہیں، تو کوئی نہ کوئی بات بنا کر ٹال دیتے۔ اکبر کے لیے میں اداس رہنے لگی۔ امی سمجھاتی تھی، بیٹی شوہر پردیس میں اپنی خوشی سے نہیں رہتے، ملازمت ایک مجبوری ہے، اگر ملازمت نہ کرے تو کمائے گا کیسے؟ معقول رہائش مل گئی تو آ کر تمہیں لے جائے گا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ ہی رہنا ٹھیک ہے۔ امی کی باتیں درست تھی،
मुझे ठीक लग रही थी। वो बच्ची को भी संभालती थी और मैं भी तबीयत की नासाजी के बायस लेटी रहती थी। इन दिनों मुझसे घर का काम काज भी नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता अकबर ने दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। मैं तो दिन गिन गिन कर गुजारती और वो आते तो अम्मी जान से बात करके सो जाते। मुझसे अजनबियों की तरह पेश आते थे। अपनी बेटी से प्यार का इजहार भी न करते। इनके चेहरे पर बेटी को देखकर जो पहले खुशी आती थी वो अब नज़र नहीं आती थी। मैंने महसूस कर लिया कि इनके तेवर बदले बदले से हैं। चंद दिनों में ही मैंने जान लिया कि अकबर अब मेरे नहीं रहे, वो किसी और के हो चुके हैं। इस सर्द रवैये की मैं आदी न थी, मुरझा कर रह गई। दिल में हजार वसवसे जागते थे। कभी सोचती किसी और लड़की की उल्फत में गिरफ्तार हो गए हैं, कभी ख्याल आता कहीं दूसरी शादी न कर ली हो। मर्द ऐसे ही आंखें नहीं बदलते। बीवी से बेइंतहाई का मतलब ये होता है कि इनके दिल में किसी और औरत ने राह पा ली है। कम से कम मेरा यही ख्याल था। अब मैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना देखती तो दिल बैठ जाता, परेशान हो जाती। वो मेरे किसी सवाल का जवाब भी ना देते थे। इनकी खामोशी और सादा डसने लगी। मेरे चेहरे से भी रौनक और हंसी गायब हो गई थी। अम्मी ने मेरी परेशानी को महसूस कर लिया। एक रोज़ समझाने लगी, बेटी, मर्द के 100 रूप होते हैं। औरत को नहीं चाहिए कि बदगुमानी के भंवर में डूबती जाए। आखिर क्यों इस कदर निढाल रहने लगी हो, अंदर ही अंदर घुल रही हो। इस मर्तबा मैं अकबर को कहूँगी कि तुम्हें साथ ले जाए। ये बात नहीं है अम्मा कि मैं बदगुमानियों के भंवर में फंसी हुई हूँ। बात यह है कि मैंने सदके दिल से ये महसूस किया है कि इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी है और वो अब इसके बगैर नहीं रह सकते। तभी हमारे लिए रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर रहे, वहाँ इनकी ज़िंदगी मुकम्मल है। बेटी के मुंह से इस कदर वसूख से जो बातें सुनी, अम्मी भी परेशान हो गई। पूछने लगी, सच बता, क्या वाकई इसने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात कही है? अम्मी जान, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप भी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुकी हैं। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई शोहर अपनी बीवी से इतनी दूरी पर हो, इतने दिन बाद घर आए और हंसकर बात न करे, तब इसका क्या मतलब हो सकता है। मेरी बातें सुनकर अम्मी सोच में पड़ गई। वो कायल हो चुकी थी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। तभी इन्होंने वहाँ जाकर खोज लगाने की ठान ली। इन्होंने अपने एक रिश्ते के भाई को एतमाद में लिया और उससे दरख्वास्त की कि तुम मुल्तान जाकर पता करो आखिर मामला क्या दरपेश है। हसन मामू मुल्तान गए, जहाँ पर अकबर रिहाइश पजीर थे। इनके दफ्तर के चपरासी से इस जगह का पता मालूम किया और वहाँ गए तो मालूम हुआ कि अकबर किसके यहाँ क़याम पजीर है, जिसका नाम रहमतुल्लाह था। ये साहब भी अकबर के ऑफिस में मुलाजमत करते थे और अकबर के मातहत थे। इन्होंने अपने घर का एक हिस्सा अकबर को रिहाइश के लिए दिया हुआ था। इनकी बेटी नूरीन बहुत खूबसूरत और 15 बरस की नोखेस कली थी। वो अकबर के सारे काम करती थी, इनके लिए खाना बनाती और इनको घर जैसा आराम दे रखा था। अकबर इस लड़की के हुस्न में खो चुके थे। इसी वजह से बीवी और बच्चों को भुला कर रखा था। यही नहीं, वो नूरीन से शादी के भी आरज़ूमंद थे। अकबर ने रहमतुल्लाह से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था कि वो इनकी साहबजादी से निकाह के ख्वाह हैं। जब एक अफसर अपने मातहत से ऐसी ख्वाहिश का इजहार करे तो मातहत इसे अपनी खुशबख्ती ख्याल करता है। रहमतुल्लाह भी बहुत खुश थे। इनकी तरक्की भी अकबर साहब ही कर सकते थे। फिर वो रहने और खाने पीने की मद में इनको आधी से ज़्यादा तनख्वाह हर माह अदा कर रहे थे, जिससे इनके घर में खुशहाली आ चुकी थी। वो इस रिश्ते को कतई रद्द करने के हक में ना थे। अकबर ने इनको यही बावर करा रखा था कि अभी इनकी शादी नहीं हुई और वो कवारे हैं। जब ये अहवाल मामू जान की मार्फत से अम्मी जान को पता चला तो उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। इन्होंने मामू से कहा, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ अकबर क़याम पजीर है। मैं इन लोगों से मिलूंगी और अगर मामला कुछ गड़बड़ हुआ तो अकबर को मैं खूब समझाऊंगी। मैंने अम्मी को मना भी किया। अम्मी जान, आप वहाँ मत जाइए, इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है। ऐसा ना हो अकबर गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाएं या आप वहाँ जाकर सबकी महसूस करें।
अम्मी जान को दामाद पर इतना भरोसा था कि कहा वो मेरे सामने नहीं बोल सकता, आखिर मैंने इसको माँ बनकर पाला है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ। वालदा इसी ज़हम में चली गईं क्योंकि मेरे यहाँ दूसरे बच्चे की वलादत मुतवक्का थी और अकबर 3 माह से घर नहीं आए थे और अब फ़ोन भी नहीं करते थे और ख़र्चा भेजना भी उन्होंने बंद कर दिया था। अम्मी जब मामू के हमरा रहमतुल्लाह के घर पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि इनका बेटा और दामाद इन लोगों में ऐसे घुला मिला हुआ है जैसे कि इन्हीं के घर का फर्द हो। अम्मी को देखकर वो सन्नाटे में आ गए और तेवरी पर बल पड़ गए। पहली बार अम्मी जान को फुप्पो कहकर मुखातिब हुए कि आप क्यों यहाँ आ गई हैं, मुझे बुला लिया होता। तुमने सब राब्ते ख़त्म कर रखे हैं बेटे, हम तुमको कैसे बुलाते, और फिर तुम्हारे दूसरे बच्चे की वलादत कल मुतवक्का है, तुम्हारा इस शहर में मौजूद होना निहायत ज़रूरी है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसी बातें यहाँ मत करें, इन लोगों ने सुन लिया तो मेरी तमाम खुशियाँ खाक हो जाएंगी। मैंने इनसे ये कह रखा है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लेकिन आखिर क्यों? अम्मी ने हैरानगी से सवाल किया। मैं इनकी बेटी नूरीन से शादी करना चाहता हूँ, इसकी इजाज़त आपसे तलब करने वाला था। अकबर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अम्मी जान सख्ते में आ गईं। इनको अपने कानों पर यकीन न आ रहा था, जिसकी फरमाबरदारी पर इस कदर नाज था वो ऐसी बात कह देगा जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर न किया था। अम्मी जान ने समझाना चाहा तो अकबर ने आंखें बदली, कहा अब आप यहाँ से चली जाइए वरना मैं राबिया को तलाक दे दूंगा। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो ज़ुबान खोलिए वरना अपनी ज़ुबान बंद ही रखिए और यहाँ से चली जाइए। ये अल्फाज नहीं नश्तर थे। मेरी माँ का कलेजा छलनी हो गया और वो रोती हुई वापस लौट आईं। अकबर इनको छोड़ने दरवाजे तक न आए थे और अम्मी जान ने खाना भी वहाँ न खाया। घर पहुँची तो सदमे से निढाल थी, रोते रोते हिचकियाँ बन गईं। कुजा वो मुझको तसल्ली देती, मैं इनको संभाल रही थी और तसल्लियाँ भी दे रही थी, लेकिन इनको सब्र ना आ रहा था। अकबर की बदसलूकी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उधर अम्मी गमज़दा और निढाल, इधर मेरी जान लबों पर थी। इसी आलम में बच्चे की वलादत हुई। अकबर को फ़ोन कराया लेकिन वो नहीं आए। चंद माह बाद इन्होंने तलाक के कागजात भिजवा दिए। अम्मी जान तो सदमे में बेहोश हो गई। खुदा ने मुझे हौसला दिया, 2 छोटे बच्चों का साथ, फिर अम्मी की ऐसी हालत। अल्लाह जानता है ये दिन मैंने कैसे बिताए और मुझ पर कैसी कयामत नहीं गुजरी। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रोती थी और दुआएं करती थी, ऐ अल्लाह, अम्मा ही मेरा वाहिद सहारा है, इनको हौसला और शिफा दे दे। माएँ क्या बेटे इसी दिन के लिए मांगती हैं, इनसे तो फिर बेटियां ही भली होती हैं कि बुरे वक्त में काम तो आ जाती हैं। यही सोचती थी और अपने अल्लाह से मदद मांगती थी। इसी हालत में 1 साल बीत गया। अचानक एक रोज़ किसी ने इत्तला दी कि अकबर ने जिस लड़की से शादी की थी वो दौरान ज़िंदगी फौत हो गई और बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अकबर की हालत बहुत बुरी है। अम्मी ने कहा, अब इसकी हालत बुरी हो या अच्छी, हमें इससे क्या, जब इसने हमसे नाता ही ख़त्म कर दिया, हमारी बला से वो जिए या मरे। ये खबर दुरुस्त थी। अल्लाह ताला ने अकबर से खुशियाँ वापस ले ली थी, जिनकी खातिर इसने अम्मी जान की रियासत और मेरी वफा को भुला दिया था, हत्ता कि अपने मासूम बच्चों की भी परवाह न की थी। आज वो भरी दुनिया में अकेला हो गया था। अकेलेपन के इस एहसास ने इसको तड़पा दिया था। तब इसको हमारी याद आ गई और वो घर लौट आया। जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे दिल ने गवाही दी कि ये वही है, क्योंकि अकबर एक मखसूस अंदाज से दस्तक दिया करता था। मैंने अम्मी जान से कहा, अम्मी दरवाज़ा खोलिए, अकबर आए हैं। वो कहने लगी, कौन अकबर? अब इसका हमसे क्या वास्ता और क्या रिश्ता है? मैंने कहा, अम्मी इसका हमसे वास्ता और रिश्ता तो है। एक रिश्ता ये कि वो अगर आपका दामाद नहीं रहा, बेटा बनाकर आपने उसे पाला तो था, बेटा तो है, और बेटा अगर ना खलफ हो तब भी बेटा ही रहता है। और दूसरा रिश्ता ये कि वो मेरे बच्चों का बाप है। ये रिश्ता बाकी रहने दीजिए, इसको मत धुतकारिए। अम्मी जान मगर सख्त खफा थी।
इन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, वो हमारा कुछ भी नहीं। अब अगर वो इस घर में अपने बच्चों से मिलने आया है तो मेरी लाश पर से गुजरकर घर के अंदर आ सकता है। ये बातें अम्मी जान ने इतने ज़ोर से कहीं कि अकबर ने सुन ली। वो उसी वक्त चला गया, लेकिन दोबारा वो हमारे घर कुछ अजीज़ों के हमरा आया जो हमारे दरमियान सुलह कराने आए थे। अम्मी ने कहा, हमने इसके साथ झगड़ा कब किया जो सुलह की गुंजाइश निकलती हो। इसने मेरी बेटी को तलाक भेजी थी, तो अब कैसी सुलह? अगर इस सूरत में सुलह कराई जा सकती है तो बताइए। इन बुजुर्गों ने हलाला का रास्ता दिखाया। मुझे मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, वरना मेरे बच्चों को इनका बाप कभी न मिलता। मेरा दिल तो फिर कुछ राजी हो गया था, लेकिन अम्मी किसी तौर पर नहीं मानती थी। बुजुर्गों के समझाने पर बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई। ताहम जब तक वो जिंदा रहीं, इन्होंने अपने दामाद से कलाम तक न किया। वो अकबर से पर्दा करती थी। आज भी अकबर को इस बात का बहुत दुख है कि इन्होंने अम्मी जान को क्यों इतना दुख दिया, लेकिन उन्हें मालूम है कि गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। जो हो गया सो हो गया, और अम्मी जान ने वो बात दिल को लगा ली। उन्हें दुख इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन्होंने अकबर को सगे बेटे की तरह चाहा था, बल्कि वो तो मुझसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थी। लेकिन अकबर ने इस मोहब्बत का पास नहीं रखा और अपनी सगी फुप्पो, जिसे वो अम्मी जान कहकर पुकारते थे, जिन्होंने इसे 5 बरस की उम्र से लेकर पाला था, उन मोतबर हस्ती के साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक रवा रखा था। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो इसको लाजमी लाइक कर लीजिए और अपने फीडबैक से लाजमी हमें आगाह रखिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बेहतर रहनुमाई करता है। अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।